Good morning, friends. In human reproduction, today we are going to take part 6, in which we will discuss menstrual cycle. So, this is the reproductive cycle in female primate, is called as menstrual cycle. But this is what reproductive cycle in female primates. We will discuss about primates and non-primates. Okay, later on we will discuss about this primate and non-primate. Primate, these are the examples of primates: monkey, apes, and human beings. So this process, menstrual cycle, a monthly cycle of ovulation, takes place in all these three examples. But some more mammals are there where menstrual cycle is not running. On another cycle, that is estrus or oestrus cycle, is running in this. So we will discuss later what is the difference between menstrual cycle and oestrus cycle. Okay, so the first menstrual cycle start at puberty, and it is called as menarche. At the time of beginning of menstrual cycle is called as menarche. The first cycle is called as menarche. It in puberty about 10 to 12 or 11 year age. This is the particular age in girls where the process of menstrual cycle started. So we will continue. So duration of the cycle in human females, menstrual repeated at the interval of every 28 to 29 days. So this is the cycle completed, we can say repeated after this particular period, 28 to 29 days. And the next one is a cycle of events start from one menstruation to the next menstruation, is called as menstruation or menstrual cycle. And in human females, menstruation is stopped at the age of 45 to 50 years, is called as menopause. We know very well about the reason behind this. A definite number of we can say oogonias remain till the puberty. That is about 350 to 500 oogonias only left in the female ovary, and this will be participated in the process of ovulation, a secondary oocyte, we can say. So that's why they are only enough till the 45 to 50 year age. That is why after that time there will be no oogonias left in the ovary which take part in ovulation, so that the process will be completely stopped. The process is this time is called as menopause. Phases of menstrual cycle. So we can discuss. We will discuss this three phases. Menstrual cycle consists of four phases. The first phase is, number one is menstrual phase, and the second is a follicular phase. Third one is called as ovulation phase, and fourth one is called as luteal phase. Okay, so in this video we will discuss about these four phases and different four hormones which control all these phases. Four hormones. Two hormones will be secreted by the ovary itself, and two hormones secreted by the pituitary gland. Ovarian hormones are the estrogen and progesterone. And the pituitary hormone, the hormone secreted by pituitary gland, will be two: luteinizing hormone LH, and one another hormone is FSH. So we will discuss about the role of all these four hormones in the process in menstrual cycle, and also we will correlate what kind of events takes place inside the ovary, what kind of events takes place in
uterus, okay, by the increasing and decreasing of concentration of all these four hormones. Okay, so the first phase, menstruation phase. In 28 days of menstrual cycle, the menses takes place on 3 to 5 days. यदि हम इस प्रोसेस को 1 डे से स्टार्ट करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5th डे, ओके, तक जो साइकिल जो फेज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज, इन विच द मेंसेस टेक्स प्लेस, मीन्स द प्रोसेस ऑफ bleeding takes place. And the next one is the production of LH from the anterior lobe of the pituitary gland is reduced. In this phase, LH, luteinizing hormone, concentration of luteinizing hormone is reduces. The withdrawal of the hormones causes degeneration of the corpus luteum, and therefore progesterone production is reduced. Production of estrogen is also reduced in this phase. The endometrium of uterus broke down and menstruation begins. The cells of endometrium started secretions. Blood and unfertilized ovum constitutes the menstrual flow. And the next one is the follicular phase. The phase usually includes 6 to 13 years, 6 to 13 days in a 28-day cycle. The follicle stimulating hormone FSH secreted by the anterior lobe of the pituitary gland. FSH stimulates the ovarian follicle to secrete estrogen. Estrogen stimulates the proliferation of the endometrium of the uterine wall. The endometrium becomes thicker by rapid cell multiplication, and this is followed by an increasing in uterine glands and blood vessels. The next phase is ovulatory phase. Both LH, luteinizing hormone, and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, about 14th day. Estrogen concentration in blood increases. A rapid secretion of LH induces a rupturing of Graafian follicle and thereby the releasing of ovum. In fact, LH causes ovulation. Luteal phase includes 15 to 28 days of the cycle. Corpus luteum secretes progesterone. Endometrium thickened and ready for the implantation. Uterine glands becomes secretory. So आपने अभी स्टार्टिंग में इसको पढ़ा है, वो जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। जब इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सभी समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंट फेजेस के बारे में हमने पढ़ा था, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, तो सबसे पहले हमने वहाँ स्टार्ट किया था मेंस्ट्रुअल फेज से। तो ये जो 28th डे है, ये साइकिल है, कहाँ से स्टार्ट किया हमने? 1 डे से स्टार्ट किया, 28 डे। तो अप्रॉक्सीमेट 28 डे से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है। 28th डे को ले लीजिए आप, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लीजिए, 4 तक ले लीजिए। सो दिस इज द, वी कैन से, इसको आप फर्स्ट फेज मान लीजिए, या क्योंकि ये साइकिल है, अब साइकिल में किसको हम फर्स्ट फेज माने, किसको सेकेंड और किसको थर्ड माने, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो वैसे इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप फॉलिकुलर फेज से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये लगभग इस साइकिल के 3rd और 4th डे से शुरू हो जाएगा फॉलिकुलर फेज। आप फॉलिकुलर फेज में यहाँ पर आइए, आप जानते हैं ये फॉलिकुलर जेनेसिस आप प्रोसेस कंप्लीट पढ़ चुके हैं। दिस इज व्हाट प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी, है ना, टर्शरी, एंड दिस इज वन द ग्राफियन फॉलिकल। आप चाहें तो यहाँ टर्शरी फॉलिकल नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्राफियन फॉलिकल पे जाइए। अब ग्राफियन फॉलिकल कब तक बन जाता है? ये लगभग
14th डे 13th डे के एंड तक 14th डे तक ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाती है। ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पर रिलीज हो गया, ठीक है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद में ओवरी में क्या बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, और वो कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होकर कार्पस एल्बिगेंस बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दिस इज द व्हाट ओवेरियन इवेंट। ये ओवेरी में क्या इवेंट हो रहा है फ्रॉम वी कैन से फर्स्ट डे टू 28th डे तक, ठीक है। तो इसको आप समझे पहली बात तो, और इसमें हार्मोन्स के रोल को समझें। तो यहाँ से यहाँ तक जो आप फॉलिकुलर जेनेसिस की प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है FSH का। फॉलिकल नाम ही उसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि ये फॉलिकल सेल्स हैं, दिस फॉलिकल सेल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे फॉलिकल का मैच्योरेशन होता जा रहा है, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। जब फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो गया था, उस कंडीशन में एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये जो FSH है, दिस इज द व्हाट पिट्यूटरी हार्मोन, ये पिट्यूटरी हार्मोन है। और इस FSH के सिक्रेशन से फॉलिकल का जो है वो डेवलपमेंट हुआ, और फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ तो इसने एक और हार्मोन सिक्रेट करना शुरू किया ओवरीन इटसेल्फ, दैट इज व्हाट एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हुआ। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हुआ तो क्या हुआ, एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वाल की थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब तक एस्ट्रोजन जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यूटेराइन वाल जो है वो कंप्लीटली थिकर हो जाएगी, इसमें ब्लड वेजल्स वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, एंड इट विल बी रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन की तैयारी करेगा, ठीक है। तो इसको कोरिलेट करेगा आप FSH को कोरिलेट करेगा फॉलिकल डेवलपमेंट से, और फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ तो एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा, और एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो यूटेराइन वाल की थिकनेस बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम थर्ड हार्मोन के बारे में बात करते हैं, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। दिस इज द हार्मोन ऑफ ओव्यूलेशन। ये पिट्यूटरी हार्मोन है, और ये सिर्फ कब सीक्रेट होता है, जब ओवम कंप्लीटली फॉलिकल जब कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है 14th डे, उसी दिन ये सीक्रेट होता है। एकदम हाई कंसंट्रेशन इसका होगा, और ये ओव्यूलेशन करवा देगा, और उसके बाद में वापस से इसका कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा। अब उसके बाद में अब जैसे यहाँ पर प्रोसेस फोर्थ हार्मोन पे आ जाते हैं हम। ये फोर्थ हार्मोन जैसे ही ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है क्या बन जाता है, कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम किसका सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फिर फर्दर डेवलपमेंट करेगा किसका, यूट्रस का, फर्दर यूट्रस का डेवलपमेंट करेगा। लेकिन जैसे देखा है आपने यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हुआ, तो उस कंडीशन में शेडिंग हो गई, इसकी यूटेराइन वाल की शेडिंग हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि द नेक्स्ट हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन, वी कैन से सॉरी ओवेरियन हार्मोन secreted by carpus luteum, that is the progesterone, and progesterone is also responsible for implantation। ये implantation के लिए responsible है कि अब ये यूटेराइन वाल को और ज़्यादा थिक कर देगा और उसको इम्प्लांट करने के लिए तैयार कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जैसे इसको 25th 26th डे पर डीजनरेट होना है, तो डीजनरेट होगा तो जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और उसका कंसंट्रेशन कम होगा तो यूटेराइन वाल भी डीजनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सीधा सा इसको इस प्रोसेस को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, एंडोमेट्रियम वॉल में किस तरीके से इवेंट होंगे, यूटेराइन इवेंट्स, ठीक है। फिर ओवेरियन हार्मोन के कंसंट्रेशन देखेंगे, ओवेरियन फॉलिकल कंडीशन यानी कि ओवेरियन इवेंट्स देखेंगे, और पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल्स देखेंगे, ठीक है। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स, और उसके साथ में रिलेशन किसका देखेंगे, ओवेरियन इवेंट्स और यूटेराइन इवेंट्स में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब ये फॉलिकुलर फेज इसको क्यों कहा, क्योंकि यहाँ फॉलिकल्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसको ओव्यूलेशन फेज क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई। ल्यूटियल फेज इसको क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया और उसने अपने हार्मोन्स को सिक्रेट किया। मेंस्ट्रुअल फेज क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो यूटरस है, यूटर एंडोमेट्रियम है, उसका शेडिंग होना शुरू हो गया, दैट इज वाई। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आप हार्मोन्स, उन हार्मोन्स का क्या रोल है, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन्स, दो हार्मोन जिसमें हम बात करेंगे LH और FSH की, व्हाट इज द रोल, देयर रोल,
इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके बाद में ओवेरियन हार्मोन जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके क्या रोल है। इस तरीके से आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और फ्लो चार्ट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।